Students, I hope you enjoyed the last video and understood the concept of hypotenuse and Pythagoras theorem. So, the Pythagoras theorem is related to a right angle triangle, and a triangle having one of its angle 90 degree is called a right angle triangle. तो ये सारे concept आपको अच्छे से याद होंगे, I hope. So it's well and good. Now I start with question number 6. So last video में हमने 1 to 5 questions को solve कर लिया था. So question number 6 is, a man goes 10 meter due east and then 24 meter due north. How far is he from the starting point? We need to draw the diagram. So it is question number 6. Sixth question, and you know about the directions. So a man goes 10 meter due east. Suppose this is the starting point A and east. So east में हम लेंगे 10 meter. Okay. So let this point is B. This is 10 meter. Then 24 meter due north. North ऊपर की तरफ होता है. So this is 24 meter. Let it be point C. It is 24 meter towards north. Then how far is he from the starting point? Means उसका starting point A था और अब वो finally C पर है, तो इसके बीच की distance में find करनी है. Ultimately we have to find the length AC. You can see that this is a right angle triangle, right angle at B. Okay, then we have to find AC. तो हम इस triangle में Pythagoras theorem use करेंगे. Just write in triangle ABC we have to write AB square. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, AC square is equal to AB square plus BC square. Write using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Then substitute the values. So AC square is equal to AB square. AB होगा 10 meter whole square plus 24 meter whole square. Then AC square is equal to 100 square meter plus 576 square meter. Okay. Then AC square is equal to 676 square meter and AC is equal to the square root of 676 square meter. और इस तरह से कि AC की वैल्यू आती है 26 मीटर. ओके. देन द क्वेश्चन इज हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. सो हम लिखेंगे हैंस he is 26 meter far from starting point. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी, बट ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम्स है. इनके करस्पॉन्डिंग आपको डायग्राम बनाना होगा, देन उसको सोल्व करना होगा प्रॉपर मेथड से. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज the sides of a triangle are 15 centimeter, 36 centimeter and 39 centimeter. Verify that it is a right angle triangle. Okay, so students, इसको वेरीफाई करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करनी होगी. इनडायरेक्टली हम पाइथागोरन ट्रिपलेट चेक कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर सबसे बिगर वैल्यू 39 सेंटीमीटर है, तो बाकी दोनों वैल्यूज का स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे. ओके, सो हियर वी जस्ट चेक इट आउट. सो हियर वी जस्ट फाइंड 15 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. तो इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी 225 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 1296 स्क्वायर सेंटीमीटर. और स्टूडेंट्स इनका टोटल करते हैं हम. ओके, सो ये है 6 + 5 11 1 कैरी, 10 + 2 12 1 कैरी, और 13 + 2 15. नाउ वी जस्ट फाइंड द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड. तो थर्ड साइड होगी 39 एंड 39 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका 39 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये भी 1521 आता है. सो लेट मी टेल यू, हम 39 का स्क्वायर चेक करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम. ओके, 9 जा 81 8 कैरी एंड 27 54 + 8 62 6 कैरी 3 3 जा 9 + 6 15. सो अगेन द प्रोडक्ट इज 1521 square centimeter. So you can see that since 15 centimeter whole square
plus 36 centimeter whole square is equal to 39 centimeter whole square. Hence, these are the Pythagorean triplet. एंड तो क्वेश्चन में जो गिवन है, वेरीफाई दैट इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल formed is a right angled triangle. Okay students, so ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 is a ladder 4.5 meter long is placed against a wall in such a way that the foot of the ladder is 2.7 meter away from the wall. Find the height of the wall to which the ladder reaches. So this is the case of right angle triangle. तो हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ओके, एक राइट ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर इस तरह से एंड this will be the hypotenuse. Okay, name the points A, B and C. So the question is a ladder 4.5 meter long. It means ये जो लेंथ है AC ये 4.5 मीटर है बिकॉज ये लेडर है. अगेंस्ट अ वॉल इन सच ए वे दैट द फुट ऑफ द लेडर इज 2.7 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. तो ये जो फुट ऑफ द लेडर है ये पॉइंट C पे होगा और वॉल जो है उसका फुट B पे होगा. तो इट मीन्स ये BC की लेंथ है जो गिवन है 2.7 मीटर एंड find the height of the wall to which the ladder reaches. Height of the wall means we have to find the length of AB. So we can say that AB square plus BC square is equal to AC square. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, अभी से हम टर्म्स को ट्रांसपोज कर देते हैं AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. ओके, नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AC स्क्वायर क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा माइनस BC स्क्वायर, तो ये होगा 2.7. ओके, दैट इज नॉट सेंटीमीटर, इट इज मीटर ओनली. माइनस 2.7 मीटर होल स्क्वायर. देन AB स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करें या आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं. आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी आई होप. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B एंड A माइनस B. बट इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस आइडेंटिटीज यू कैन सॉल्व डायरेक्टली. तो 4.5 का हम स्क्वायर करते तो ये आता है 20.25 स्क्वायर मीटर और 27 का स्क्वायर हम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, 27 का. सो इट इज 7 7 जा 49 4 कैरी एंड 14 14 28 प्लस 4 32 3 कैरी एंड इट इज 7 729. सो इट इज 7.29 स्क्वायर मीटर. नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू, सो फाइंड द डिफरेंस. हम डिफरेंस फाइंड करेंगे. सो 20.25 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7.29 को. ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये होता है 6, यहाँ पे आएगा 9 और ये आएगा 12. सो इट इज 12.96 स्क्वायर मीटर. नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.96. तो AB की जो लेंथ आएगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 12.96 स्क्वायर मीटर एंड हैंस AB इज इक्वल टू. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको ये नहीं पता है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है तो आप हिट एंड ट्रायल्स कर सकते हैं. लिसन कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू. 12.96 है तो पहले हम डेसिमल जो है उसको हम अवॉइड करते हैं, 1296 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑल्सो. तो 6 का मतलब यूनिट डिजिट पे या तो 4 होगा या 6 होगा, इस तरह से कोई 2 डिजिट का नंबर होगा. देन जस्ट ट्राई. हमें पता है कि 35 का जो स्क्वायर होता है ओके वो 1225 होता है. कुछ वैल्यूज आपको याद भी रखनी होगी. तो 1296 इससे थोड़ा सा बिगर है, तो हो सकता है 34 का 36 का स्क्वायर हो, बट बाय द प्रैक्टिस वी नो दैट इट इज द स्क्वायर ऑफ 36. तो डेसिमल की वजह से यहाँ पर हम एक डेसिमल भी लगाएंगे 3.6 मीटर. ओके, सो ए बी की जो लेंथ होगी स्टूडेंट्स वो होगी, लेट मी रिमूव दिस. ओके, then the question was find the height of the wall. Hence height of the wall is 3.6
meter. So it is the answer of question number 8. Okay, students, and the question number 9 is very important, very very important. So here we have to do diagram also. Two poles of height 9 meter and 14 meter stand upright on a playground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. Now let it be the ground. ओके, एंड यहाँ पर दो पोल हैं, दोनों की हाइट डिफरेंट है. तो सपोज एक 9 मीटर का है और दूसरा पोल जो उसकी हाइट है 14 मीटर. तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, करेक्ट. ओके, दिस इज the pole AB, this is pole CD, and what is given? It is 9 meter and it is 14 meter. Then distance between their feet is 12 meter. It means ये जो BD होगी, length BD is 12 meter. Find the distance between their tops. Tops का मतलब AC, A और C के बीच में जो distance है स्टूडेंट्स वो हमें find करनी है. Okay, so this question is very important. बिकॉज यहाँ पे अभी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. तो इसमें किसी भी तरह से हमें एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा. सो लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस. यहाँ पर ए से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो बी डी के पैरेलल होगी. ओके, इस तरह से ए से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो बी डी के पैरेलल हो और सी डी पर परपेंडिकुलर हो. सो यू कैन सी दैट दिस इज राइट एंगल. ओके, दिस इज शेडेड, दिस एंगल इज राइट एंगल. नाउ वी कैन यूज पाइथागोरस प्रॉपर्टी. तो कैसे करेंगे? इन द फिगर यू कैन सी दैट लेट दिस बी पॉइंट ई. ये जो पॉइंट है ये ई होगा. ओके, दिस इज पॉइंट ई. नाउ सी ई इज इक्वल टू सी डी माइनस ई डी. तो इसकी लेंथ जो है वो होगी 14 मीटर माइनस 9 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर. बिकॉज लेट मी टेक सम हाईलाइटर. ओके, सो आप ये देख रहे हो ये जो ए बी है और ये ई डी दोनों इक्वल होंगी बिकॉज हमने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. तो ये ए बी के इक्वल पार्ट कट करेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज नाउ बिकम्स रेक्टेंगल. तो ई डी की लेंथ भी 9 होगी और अगर हम 14 में से 9 माइनस करें तो सी डी की लेंथ हमें मिल जाएगी. देन ए ई ऑल्सो इक्वल टू बी डी. सो वी जस्ट राइट ए ई. नो स्टूडेंट्स, ए ई की लेंथ बी डी के इक्वल होगी बिकॉज यहाँ पर ए बी डी ई एक रेक्टेंगल बन गया है. सो इससे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू. सो हियर यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉ ए ई पैरेलल टू बी डी intersecting CD at E. Then we just write AE equal to BD is equal to 12 meter. Now in the triangle AEC we can use Pythagoras property. तो अब हम AE के सामने इसके पास मार्क करेंगे 12 और ये हो जाएगा 5 मीटर. Okay students, now easily we can find the length of AC. So in triangle AEC, in triangle AEC हाइपोटेन्यूज कौन सा हो यहाँ पर AC, तो हमें AC फाइंड करना है. वी जस्ट राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर. देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE की लेंथ कितनी होगी 12. सो इट इज 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. ओके, इट इज 144 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 25 square centimeter. Then it is just 169 square centimeter and hence AC is equal to, आपको ये लिखना होगा. and I hope you remember the values of root 169. so ये 13 का स्क्वायर होता है. so the answer is 13 centimeter. it means the distance between the distance between their tops, hence distance between their tops is, sorry it is not centimeter, it is meter. okay students, by mistake है ना, it is 13 मीटर. तो जहाँ भी सेंटीमीटर हम उसको मीटर करेंगे, मीटर.
everywhere. So here I make some corrections also, because all the measurements are given in meter only, no centimeter. Now it's all right. So students, answer of question number 9 is 13 meter. Now question number 10 is, the sides of a triangle are of length 6.5 centimeter, 6 centimeter and 2.5 centimeter. Is this triangle a right triangle? If so, which is the hypotenuse? Okay, so again this is the case of Pythagorean triplet. तो क्या ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है? तो यहाँ पर हम चेक करेंगे. Let, okay, so we find the सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर साइड्स. तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो 6.5 सेंटीमीटर बिगेस्ट साइड है, हो सकता है हाइपोटेन्यूज हो, तो बाकी स्मॉलर साइड के लिए हम चेक करेंगे 6. हम अज्यूम भी कर सकते हैं. ओके, लेट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. नाउ AB square plus BC square is equal to 6 centimeter whole square plus 2.5 centimeter whole square. तो ये वैल्यू हो जाती है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 42.25 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये हमारी जो लेंथ आती है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करने पे मिलता है 42.25 स्क्वायर सेंटीमीटर. सिंस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, hence triangle ABC is a right angled triangle. और इसमें यह भी पूछा है इफ सो विच इज द हाइपोटेन्यूज. तो स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज जो होती है वो बिगर साइड होती है. ओके, ऑलवेज एक किसी भी राइट ट्राइंगल में बिगेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं. यू कैन सी दैट इट इज सी ए, हियर इट इज 6.5 सेंटीमीटर. सो विच इज द हाइपोटेन्यूज? साइड AC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर is the hypotenuse. Okay, so सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 बिकॉज 11th क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे. 11th क्वेश्चन एग्जैक्टली 9 और 10 की तरह है, जिसमें हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करनी है. बिकॉज एक रेक्टेंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो डायगोनल के साथ में वहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. सो आई एम गिविंग जस्ट एन आइडिया. ये एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर अगर हम कोई डायगोनल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो मैं यहाँ सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसके बेस पे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन सकता है, यू कैन सी. तो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करके और डायगोनल की लेंथ फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट इज triangle ABC is an isosceles right triangle, right angled at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. So this is important question. Read the question carefully. ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है. इट मीन्स राइट तो है ही बट उसकी दो साइड्स इक्वल हैं इन दिस वे. सो हियर दिस इज अ ट्राइंगल, लेट इट बी ए. ओके, राइट एंगल्ड एट सी. तो इसको भी केयरफुली पढ़ना हमें. दिस इज राइट एंगल्ड एट सी एंड दिस इज ए बी सी. तो यहाँ पर दो तरह की इंफॉर्मेशन है हमारे पास. एक तो कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर सी पर राइट एंगल बन रहा है. दूसरा, इसमें दो साइड्स इक्वल हैं. तो दोनों साइड्स इक्वल कौन सी होंगी? दिस एंड दिस. सो आइसोसेलेस मीन्स एनी टू साइड्स आर इक्वल. तो हम कहेंगे हियर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी सी इक्वल टू ए सी. Now we have to prove that AB square is equal to 2AC square. So we use the Pythagoras property only. It means we just write BC square plus
AC square is equal to AB square, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है. देन वी नो दैट BC is equal to AC. ओके स्टूडेंट्स, सो हम BC की ऐसे पुट करेंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे सिंस AC इज इक्वल टू BC. तो यहाँ पे ये हो जाता है 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB square is equal to 2AC square. So it is proved now. So write hence proved. Okay students, so we have completed exercise 12.3. So it was very interesting. Try to solve the examples and remaining questions